हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज सबसे पहले मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए। आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स नेक्स्ट वीक के अंदर स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पूछते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बजाय आप इम्पोर्टेंट यूनिट सेलेक्ट कर लें, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो पूरे सिलेबस को कवर कर रहा होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि पूरा सिलेबस उसको टच हो जाता है। इसलिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को इम्पोर्टेंट कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है। फिर भी मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि एटलीस्ट आप 2 या 3 यूनिट्स को कंप्लीट प्रिपेयर करें, उसमें कुछ भी टॉपिक आप नहीं छोड़ें, और बाकी जो बची हुई यूनिट्स हैं उनके अंदर आप कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स ले सकते हैं। और बेटर तो यही है कि आप सभी यूनिट्स को अच्छे से करें, क्योंकि इस बार आपको चॉइस ज़्यादा मिल रही है, लेकिन एटलीस्ट आपको 3 यूनिट्स तो करना चाहिए। तो आपका फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट का है, जिसकी फर्स्ट यूनिट डिफरेंशियल कैलकुलस है। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है एसिम्पटोट। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम एसिम्पटोट के बारे में देखते हैं कि एसिम्पटोट क्या होती है, और इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करते हैं। एसिम्पटोट का ये जो टॉपिक है वो मैम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। Today's topic is asymptote. So we can define asymptote as the straight line. That means asymptote of a curve is a straight line. So if we consider a curve y equals to fx, this is your curve. Okay. So the asymptote of this curve would be this line. That means y, this straight line. This line is at a finite distance from origin, जो कि origin से finite distance पे होगी, लेकिन to which the tangent to the curve tends to meet the curve at infinity. So if we extend this curve, okay, if we extend this curve, so this curve will tend to meet this line at infinity, or we can say it will not meet the curve. Okay. Now there are two types of asymptotes. First is parallel asymptotes and second one is oblique asymptote. Parallel asymptotes are of two types. That means you can have horizontal asymptote and vertical asymptote also. So parallel asymptotes are the asymptote which are parallel to the axis. That means parallel to x-axis or parallel to y-axis. Okay. The second asymptote is oblique asymptote. That means the asymptotes which are not parallel to the axis are oblique asymptotes. So the method of finding the asymptotes, that means parallel asymptotes and oblique asymptotes, are different. Okay. So in order to find, in order to check, अगर हमें check करना हो कि the given equation, in the given equation the asymptotes are whether parallel or oblique asymptotes. So for this what we are going to do is we're going to check the highest power of x and y in the given curve. Okay, so in a given curve, if the highest power of x and y are constant, to check whether the given curve is having a parallel asymptote or oblique asymptote, we're going to check the highest power of x and y. If the highest power of x and y, the coefficients of highest power of x and y are constant, then they will give oblique asymptotes. And if the highest power of x and highest power of y, we're going to check their coefficients. If their coefficients are variable, then they will give oblique asymptotes. Then the procedure for finding parallel asymptote would be asymptote parallel to x-axis would be obtained for a given equation. We're going to first of all we're going to check the highest power of x as well as highest power of y. Then we're going to check the coefficients of these highest power of x and y. If these coefficients are variable, then the given asymptotes
the given equation will give parallel asymptotes, and if these highest power of x and y are coefficients of highest power of x and y are constant, then definitely they will give oblique asymptote. Okay, now the procedure is very simple. The coefficient of highest power for x and y are variable, then we're going to equate these coefficient equal to 0, and if these coefficients are equated to 0, this will give you the asymptote parallel to maybe x-axis or y-axis, depending on whose coefficient are we going to substitute equal to 0. Okay, so we're going to explain this by the example. For example, find the asymptote parallel to coordinate axis to the curve this is the given curve. Okay, so if we write this curve as this form. Okay, now here if as we see that highest power of y is 2. Okay, so that means as y square we are having, so highest power of y is 2, and the coefficient of the highest power of y is a variable, that means it is a x, not constant. If instead of x there would be 2, 3, 4 or any constant value, then we can say that this curve is giving an oblique asymptote. But here the coefficient of highest power of y is 2, and its coefficient is, as we know, this coefficient is x, and which is a variable. So here we are going to get an asymptote parallel to y-axis. Okay, so we're going to equate the coefficient equals to 0. That means highest, we know that highest power of y is 2 and its coefficient is variable. Now we're going to equate this coefficient equals to 0. ठीक है, so we can easily say इसका जो coefficient है उसको equal to 0 put कर दिया, और हम easily कह सकते हैं कि x equals to 0 is the asymptote parallel to y-axis. Okay, similarly we're going to check for the highest power of x also. Okay, now this equation can be turned into, if we take x common, y square minus a square plus a cube is equals to 0. ठीक है, वही इक्वेशन लिखी है, उस इक्वेशन में हमने क्या किया है, फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन ले लिया है. ओके, x कॉमन लेने के बाद आप देखिए the coefficient highest power, definitely x की highest power 1 है. Okay, the highest power of x is 1 and its coefficient is again a variable, y square minus x square. So again we are going to get a parallel asymptote, that means an asymptote parallel to x axis, because the highest power of x, the coefficient of highest power of x is variable. जो हाईएस्ट पावर हमने देखी है x की, क्योंकि x की और कोई टर्म नहीं है और x की एक ही टर्म है जिसमें हाईएस्ट, जिसकी पावर 1 है, तो वही हाईएस्ट पावर होगी, और उसका कोफिशिएंट जो है वो कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल है. अगर मान लीजिए x के साथ y स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं होके कोई कांस्टेंट वैल्यू होती तो हमें ओब्लिक एसिम्प्टोट मिलता, लेकिन x के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है, दिस कोफिशिएंट इज वेरिएबल. ओके, सो नाउ इक्वेटिंग टू 0 द हाईएस्ट पावर ऑफ x, दैट मीन्स कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. So now equating y square minus a square equals to 0, or we can say y square is equals to a square, or y equals to plus minus a. Okay, so here we are getting two asymptotes, or we can write y equals to a and y equals to minus a, y minus a equals to 0, or y plus a equals to 0. So here we are getting two asymptotes, that means these two are the asymptotes, y minus a equals to 0 and y plus a equals to 0 are the asymptotes. किसके कोफिशिएंट्स अपन ने इक्वल टू 0 पुट करिए थे, x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट. सो दैट मीन्स हियर दीज टू asymptotes are the asymptotes parallel to x axis. ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए हमें दोनों asymptotes मिल गए, दैट मीन्स asymptotes parallel to y axis as well as asymptotes parallel to x axis. और ये यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, हाईएस्ट जो डिग्री है इस इक्वेशन की, इसकी जो गिवन कर्व की जो डिग्री होती है उतने ही हमें asymptotes मिलते हैं.
तो यहाँ पे देखिए y की पावर 2 है और x की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी इस इक्वेशन की 3। तो देखिए हमें 3 एसिम्पटोट्स मिले हैं, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0 एक एसिम्पटोट मिला है पैरेलल टू y एक्सिस, वेरेज 2 एसिम्पटोट्स दैट मीन्स y इक्वल टू y माइनस a इक्वल्स टू 0 एंड y प्लस a इक्वल्स टू 0 asymptote है that is parallel to x-axis. Okay, now let us take an example of oblique asymptote. So find the asymptote of the curve and the curve is given here. As I told you before कि अगर हमें check करना है कि हमें इस कर्व में parallel asymptote मिलेगा या oblique asymptote मिलेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या check करना है, हाईएस्ट पावर x की और y की। तो यहाँ देखिए इस इक्वेशन में देख के लग रहा है कि हाईएस्ट पावर x की इज x क्यूब एंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 3 दैट इज कांस्टेंट, है ना। x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है। और इसी तरह दोनों के हम देखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ x और y की भी हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पे 3 है और y क्यूब का कोफिशिएंट भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कोई इस कर्व में कोई भी पैरेलल एसिम्पटोट्स नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पे ओब्लिक एसिम्पटोट्स ही मिलेंगे। एंड नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स मतलब कितने एसिम्पटोट्स मिलेंगे वो हम डिग्री को चेक करते हैं कि इस कर्व की डिग्री कितनी है। तो डिग्री भी हमें दिख रही है कि 3 है इस कर्व की। सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गेट 3 एसिम्पटोट्स, मतलब 3 एसिम्पटोट्स मिलेंगे और तीनों एसिम्पटोट्स हमें ओब्लिक एसिम्पटोट मिलेगा, कोई भी एसिम्पटोट पैरेलल एसिम्पटोट नहीं मिलेगा। ठीक है, तब ओब्लिक एसिम्पटोट को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि put x equals to 1 and y equals to m in highest degree terms। अब इसमें हमें पता है कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो हम लिखेंगे इन थर्ड डिग्री टर्म्स। ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू इक्वेट दैट इक्वल्स टू 0। तो थर्ड डिग्री टर्म को हम ऐसे phi 3m से डिनोट करते हैं कि भाई जो थर्ड डिग्री की टर्म्स है, so we denote this as phi 3m। तो देखिए थर्ड डिग्री के टर्म्स कौन से हो गए, y क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो x माइनस एक्स स्क्वायर y 3x क्यूब। तो यहाँ तक की जितनी भी टर्म्स आ रही है हमारी, यहाँ से यहाँ तक की, इन सबको हम x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे x को हमें 1 पुट करना है और y को m, तो ये आ गया m क्यूब माइनस 3 एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 3। सिर्फ थर्ड डिग्री के टर्म्स में ही हमें ये सब्स्टिट्यूशन करना है। ओके, अब इसके फैक्टर्स निकाल देते हैं, फैक्टर्स निकाल के इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके हम इसके m की वैल्यूज निकाल देते हैं। ओके, और वी कैन से कि सब्स्टिट्यूट दिस phi 3m इक्वल्स टू 0 और वी कैन से m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स निकाल के m की वैल्यूज निकाल देंगे और m के रूट्स निकाल देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में बहुत इजीली रूट्स निकल जाएंगे। गोइंग टू टेक m स्क्वायर कॉमन, m माइनस 3 आ गया, यहाँ पे भी m माइनस 3 और माइनस 1, m माइनस 3 m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो m इक्वल्स टू 3, 1 and minus 1. Okay, these three are the roots of m, that means values of m. Okay, as we have already told that asymptote, if we talk about asymptote की बात करें तो asymptote is a straight line, है ना। तो straight line का इक्वेशन हमें पता है y equals to mx plus c है। So हमारा मेन एम क्या है कि हम x और y तो हमारे पास है ही, हमारा मेन एम है m और c को फाइंड आउट करना। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो m की वैल्यू इस इक्वेशन में निकाल दी हमें 3 इस तरह की इक्वेशंस मिलेगी स्ट्रेट लाइन की, क्योंकि हमें पता है कि इस इक्वेशन के लिए 3 एसिम्पटोट्स हैं। ओके, और स्ट्रेट लाइन है एसिम्पटोट, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो हमें हमारा मेन एम क्या है कि m और c की वैल्यूज फाइंड आउट करना। तो देखिए m की तो 3 वैल्यूज निकाल दी हमने, ठीक है। अब c की 3 वैल्यूज निकालनी है। c एक्चुअली यहाँ पे तो क्या डिफरेंट रूट्स आए हैं। ओके, अब कई क्वेश्चंस आगे ऐसे आएंगे जिसमें सेम रूट्स आएंगे आपके, ठीक है। तो उसके लिए c का फॉर्मूला अलग रहेगा, लेकिन फॉर डिफरेंट रूट्स ऑफ m द फॉर्मूला फॉर c वुड बी c इक्वल्स टू माइनस
इसका एक जनरल फॉर्मूला आपको बता देती हूँ पहले मैं। माइनस साइन के साथ फाई n माइनस 1m अपॉन फाई n डैश m। ओके, n आपका हाईएस्ट डिग्री हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस केस में, इन दिस केस, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सी का फॉर्मूला मैंने कहा था हाईएस्ट डिग्री आपका यहाँ पे जो n है हाईएस्ट डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारी हाईएस्ट डिग्री है आपकी 3, तो फाई 3 डैश m और यहाँ पे आ जाएगा फाई 2 m। ओके, अब फाई 3 डैश m मीन्स कि फाई 3 m तो देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, दिस फाई 3 m ऑलरेडी निकाल रखा है। फाई 3 डैश m मतलब इसको डिफरेंशिएट करके हम इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। ओके, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस फाई 3 m एंड पुट द वैल्यू हियर। फाई 2 m सेकेंड डिग्री की टर्म में सेम सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम, तो फाई 2 m आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम फाई 2 m निकाल देते हैं। तो दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m इन सेकेंड डिग्री टर्म, मतलब जैसे यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 y इक्वल टू m थर्ड डिग्री टर्म में हमने पुट किया तो फाई 3 m निकला। अब x इक्वल्स टू 1 y इक्वल टू m इन सेकेंड डिग्री टर्म्स में, ठीक है। तो अब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास फाई 2 m आ जाएगा। तो इफ यू टॉक अबाउट सेकेंड डिग्री टर्म्स, सो राइट फ्रॉम हियर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टर्म्स जो है हमारी सारी सेकेंड डिग्री टर्म्स है। देखिए इसकी भी डिग्री 2 आ रही है, इसमें पावर 1 1 2 डिग्री हो गया, इसका भी डिग्री 2 हो गया। तो इसकी वैल्यू होगी आपकी -3m²। इसमें जो सेकेंड डिग्री टर्म्स में उसे हमें x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू m सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3m² प्लस 10m माइनस 3। ओके, और फाई 3 डैश m की बात करें तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट फाई 3m। ओके, तो फाई 3 डैश m हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ m³ वुड बी 3m² माइनस 6m माइनस 1। ओके, अब ये वैल्यू क्या करते हैं, हम इसमें पुट कर देते हैं। ये दोनों जो हमने वैल्यूज निकाली है, पुट दीज वैल्यूज इन सी। तो अब सी के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, फाई 2m और फाई 3 डैश m की। तो फाई 2m इज -3m² प्लस 10m माइनस 3 अपॉन 3m² माइनस 6m माइनस 1। ओके, दिस माइनस साइन इज कॉमन, फॉर्मूले में ही है। तो हमारे पास m की देखिए हमने जो वैल्यूज निकाली थी, m के रूट्स 3 रूट्स निकले थे अपने, 3 1 एंड -1। ठीक है, सो नाउ टेकिंग, पहले आप m की वैल्यू 3 ले लेते हैं फॉर m इक्वल्स टू 3। तो m को जब 3 ले रहे हैं हम, तो c में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसको सॉल्व करके फाइनली जो रिजल्ट आएगा, माइनस साइन कॉमन है, यहाँ पे देखिए अल्टीमेटली वैल्यू न्यूमरेटर जो है वो 0 दे रहा है आपको। ओके, न्यूमरेटर देखिए 0 दे रहा है, तो अल्टीमेटली c टर्न्स आउट टू बी 0। सो व्हेन m इज 3, वैल्यू ऑफ c इज 0। ओके,
अब हम 3 ले लिया हमने, नेक्स्ट वैल्यू 1 ले लेते हैं. सो नाउ फॉर m इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, इसमें पुट कर देते हैं हम c की, m की वैल्यू. ये वैल्यू आपकी 1 आ रही है. m इज इक्वल्स टू 1, c की वैल्यू 1 आ रही है. एंड फाइनली फॉर m इक्वल्स टू -1, द वैल्यू ऑफ c वुड बी, इस फॉर्मूले वापस पुट कर देते, m को -1, -3 -1 का स्क्वायर 1, -10 क्योंकि m -1 है, 3 -6 -1. तो ये वैल्यू आपकी 2 आ गई. सो व्हेन m इक्वल्स टू 1 -1, c इक्वल्स टू 2. ठीक है. सो देखिए आपको ये 3 वैल्यूज मिल गई, 1 2 3, 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m एंड c. m का जब वैल्यू 3 आ रही है, सो वी गोइंग टू गेट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ c एज 0. यहाँ पे m की वैल्यू 1, तो कॉरस्पॉन्डिंग c की वैल्यू 1, और m -1 है तो c की वैल्यू 2 आ रही है. अब हमें पता है कि एसिम्प्टोट इज अ स्ट्रेट लाइन, सो इक्वेशन वुड बी y इक्वल्स टू mx प्लस c, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. तो बस अब इसमें हम ये m और c की वैल्यूज पुट कर देते हैं. पहले में हमारे पास क्या था कि जब हमारे पास m की वैल्यू 3 थी, यहाँ देखिए जब m की वैल्यू 3 थी, c की वैल्यू 0 थी, तो पुट कर देते हैं c इज 0, तो y इक्वल्स टू 3x. दिस इज योर फर्स्ट एसिम्प्टोट. दूसरे में देखिए यहाँ पे m की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू 1 है, तो सेकेंड एसिम्प्टोट वुड बी m की वैल्यू 1, c की वैल्यू भी 1 है. ठीक है. और लास्ट वैल्यू है आपकी m की वैल्यू -1, c की वैल्यू 2, तो m की वैल्यू -1, c की वैल्यू 2. So these are the 3 required asymptotes for the given curve. You can write this equation in this form also. This is the first asymptote. This is the second. This is the third asymptote. These 3 are the required asymptotes of the curve. अब इस क्वेश्चन में क्या था कि m की वैल्यूज आपकी तीनों डिफरेंट थी. ओके. सो अब आगे क्वेश्चंस और दूसरे टाइप के आ सकते हैं जिसमें m की वैल्यूज सेम हो, मे बी 2 वैल्यूज और 3 वैल्यूज, उसके लिए c का फॉर्मूला डिफरेंट होगा. सो दैट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.